scored like say out of the full mock, all 3 sections combined, I scored 20 marks. सर एक बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो स्कोर फ्लक्चुएशन की. If somebody is really struggling with the basics, okay, and if they're aiming to get to 99 or 99.5, maybe it is not realistic. Less than 3 months are left for the CAT exam. Realistically speaking, is this the enough time to crack 99%? But what I would say is don't worry about where you can reach or what will the percentile be, because that is only going to add to like more stress. तो सर जैसे कि आप बता रहे थे काफी ज्यादा मॉक्स भी नहीं देने चाहिए, फुल लेंथ मॉक. अभी ये मॉक इतना important नहीं है, and probably doing only the things that you're good at, okay, and trying to improve there is not going to help you a lot. तुम थोड़ा casual हो, थोड़ा careless हो, और कम होता है. On the day of the examination also, you won't be able to figure out your hidden resources. If somebody is telling me that they have attempted only 17 questions, okay, that is very clearly a bad strategy. बस एक लास्ट में जाते जाते अगर कोई गोल्डन एडवाइस आप स्टूडेंट्स को देना चाहें इस साल कैट के लिए. If it is very bad, also it's fine. Sir, as you can see, less than 3 months are left for the CAT exam. Realistically speaking, is this the enough time to crack 99%? It depends on where that person is right now. Okay, to be really honest, if somebody is really struggling with the basics, okay, and if they're aiming to get to 99 or 99.5, maybe it is not realistic. But what I would say is don't worry about where you can reach or what will the percentile be, because that is only going to add to like more stress. Yeah. The thing that which I can say for sure is if you focus on and put in good efforts for these 3 months, you can definitely improve significantly. If somebody is getting say around 60 percentile, they can realistically aim to get to 85 percentile with full effort in these 3 months. Okay. Somebody who is scoring around 80 percentile, I think can definitely aim to get around say 97, 98. Okay. Somebody who is already scoring above 90 percentile can realistically aim to get to 99 percentile in these 3 months. That improvement I think is definitely possible. ओके. और सर जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी मार्च अप्रैल में, वो मेहनत तो काफी महीनों से कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेट्यू आ जाता है प्रिपरेशन में, राइट, उनके स्कोर्स इंप्रूव नहीं हो पाते उस एक लेवल से, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको बेसिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि उनका स्कोर क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा है. ओके, अगर कैट में देयर आर two kinds of things. Okay, suppose you are just preparing without putting in effort के मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, okay, कहाँ पे मैं improve कर सकता हूँ. अगर काफी इंट्रोस्पेक्शन होगा एंड यू रियलाइज के देखो इसमें मैं स्कोर अच्छा कर रहा हूँ, इसमें मैं स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ओके, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एग्जांपल वर्बल में अगर मेरा स्कोर कहीं पे अटक रहा है, एट 20-25 अटक रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, देन यू हैव टू फिगर आउट कि उसका रीजन क्या है, एंड यू हैव टू ट्राई डिफरेंट स्ट्रेटजीज. Like recently I was telling people, some of the CAT aspirants, that if somebody is telling me that they have attempted only 17 questions, okay, that is a very, in verbal, out of 24, that is very clearly a bad strategy. Okay, so if you are just attempting 17, how much ever your accuracy will improve, your score is not going to cross more than 30. Okay. Yeah. So if you are looking to score say higher than 40 in verbal, you have to attempt all the 24 questions. Similarly, there will be issues with respect to the exam strategy. Okay. So unless you figure out and introspect where you are lacking, it is easy to just feel defeated. It is easy to feel that मैंने काफी मेहनत किया बट मेरा स्कोर नहीं इंप्रूव रहा है. बट मेहनत का भी दो अलग तरीके होते हैं. एक ये है कि एक्टिवली सोच के मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ओके, इंट्रोस्पेक्ट करके उसमें वॉट एवर इज योर एरिया ऑफ वीकनेस, उसमें एफर्ट लगाना इज वन थिंग. Just mindlessly putting in that effort or putting in that hours and probably doing only the things that you're good at, okay, and trying to improve there is not going to help you a lot. Yeah. For example, suppose if I have to give you an example, okay, I play a lot of chess. Okay. Now, to improve in chess, many people say you have to practice a lot of these chess puzzles. Yeah. Okay. Now, if you are just solving checkmate in 1 or mate in 2, okay, you're already good at it, but you enjoy doing it. So, if you continue to do it, your chess strategy or your chess aptitude will not increase. Your chess reading also will not improve. You have to figure out what is it that you're lacking in chess. Okay. Are you lacking in the middle game or in the opening or in the end game? Okay. Or is your time management good? There are so many things that you can actually figure out and then work on your areas of weakness. Even in CAT, you have to figure out what is your area of weakness, what is it that is bringing your score down. You have to analyze it properly and put in your effort there. Then I think your score will improve. Okay. और सर कई स्टूडेंट्स जो है वो टाइमर के प्रेशर में आके पैनिक करते हैं. उन्हें पता था कि भाई ये क्वेश्चन वो एग्जाम में कर सकते थे, उन्हें पता था कि ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 22 लाइक मे बी 15 to 20 मार्क्स का इजीली नुकसान हो जाता है, राइट. तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जा सकता है? प्रेशर को पहली बार होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, ओके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेशर में आके यू स्टॉप टेकिंग मॉक्स. अगर प्रेशर के आगे बढ़ना है तो मॉक्स काफी ज्यादा लेना चाहिए, एंड मॉक्स को भी ऐसा लेना चाहिए जो अपने आप को वी हैव टू लाइक गेट इनटू अ डिल्यूजन कि देखो ये एक्चुअल कैट एग्जाम है. वो मॉक के बारे में, क्योंकि मैंने काफी बार नोटिस किया कि
हम जो भी अपने माइंड को बताएंगे वो बिलीव कर लेती है. ओके, Yeah. तुम अच्छे से उसको समझाओ कि नहीं ये कैट एग्जाम है. ओके, Yeah. then don't question it. Okay, don't have anything finding it like you should not find it contradictory. You should tell yourself that this is the CAT exam and your brain will listen to you. Okay, and then take the examination also with that amount of seriousness. Now you will falter once, you'll falter twice, you'll falter 3 times, but again you have to figure out a way to motivate yourself. One way to do it is, suppose you have a pathetic mock, you messed up, you choked a lot, okay, because of the temperature. The next time you have to just tell yourself that that was the worst mock. Okay, I scored, like, say, out of the full mock, all 3 sections combined, I scored 20 marks. Okay. And then you'll be feeling, okay, yahan se main kahan pe improve karunga. All you have to tell yourself is, okay, next mock mein I have to just get to 25. Okay. Now, if I control my nerves a little, that is sufficient. Okay. Now, you have to figure a way out in which you can control your nerves. You have to tell yourself that I have to just improve. If it is very bad, also it's fine. If I'm choking also a lot, that is fine. The next time I have to just improve a little. Now, once you improve a little, you will feel more confident that this can actually be done. You will feel that, okay, I can actually have control over my nerves. Yeah. तो सर ये मॉक्स के स्कोर की जैसे आप बात कर रहे थे, इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए? आई मीन मान लो आपने जैसे कि कहा कि बहुत ही पैथेटिक मॉक हुआ, उसका एक स्ट्रेस दिमाग पे आ जाता है कि वो अपनी कॉम्पिटेंसी पे बिलीव करना बंद कर देते हैं. वो सोचते हैं कि नहीं ये मेरी वजह से हुआ है, मेरे को शायद आता ही नहीं था, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो जिसकी वजह से और ज्यादा प्रेशर आता है. और ये हाई टाइम है, अगर आप देखें तो लेस देन 3 months आर लेफ्ट, राइट? तो इस चीज को लेके आप क्या करना चाहेंगे? कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो, जो करना चाहिए वो है कि मॉक्स रेगुलर लेना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है. ओके, तो जो भी उसको हर्डल कर रहा है, जो भी जिसके वजह से तुम मॉक्स नहीं ले रहे हो, ओके, वो मत करो. अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं मॉक लेके मैं उस पर बहुत लोड ले रहा हूँ और इसकी वजह से मॉक्स लेना बंद कर रहा हूँ या मॉक्स अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ, तो वो गलत है, तो वो मत करो. तो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं मॉक लेने से मुझे थोड़ा लोड हो रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस इश्यूज आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि देयर आर सो मेनी गैप्स, मैं क्या करूंगा, उस टाइम पे मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, तुम अपने आप को अगेन थोड़ा डिल्यूजन में डाल दो कि देखो अभी ये मॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, क्या इंपॉर्टेंट है कि मॉक्स कोर्स जो अक्टूबर में आएंगे वो इंपॉर्टेंट है. ओके, और अभी मैं मॉक्स लूंगा ताकि मेरा मॉक स्कोर जो भी अक्टूबर में आएगा वो इंप्रूव होगा. ओके, दैट वे यू आर टेकिंग सम प्रेशर लेसर. ओके, द प्रेशर दैट यू विल टेक विल बी लेसर. एंड अक्टूबर में यू टेल योरसेल्फ कि देखो ये मॉक भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक स्कोर इन नवंबर इज द इंपॉर्टेंट थिंग. द होल पॉइंट इज दैट व्हेन यू आर डिल्यूजनिंग योरसेल्फ, ओके, and you are keeping your calm, okay, then your scores will improve. Okay, you'll take more mocks, you'll at least feel better about taking mocks. Yeah. Then in November you'll realize that okay, my scores are not actually that bad. And अगर कुछ हो गया नवंबर में, okay, and your mocks suddenly falter, which happens to a lot of people. Yeah. A lot of people in November, because of the anxiety, because of the stress, their mock scores will fall down. But then you should be strong enough, okay, to look back at your scores. The reason I ask people to note down their list of mock scores is because in November, when you have, say, 2 very bad mocks, then you can logically tell yourself that, okay, my mock scores for the last 2 months were actually pretty decent. Okay. If I just suffered 2 mocks, the whole reason for that is that I'm anxious or I'm nervous. Okay. And this is a normal thing. It is not as if my preparation was not good or I'm not good. Okay. Yeah. The whole point is, but for that to happen, for you to have that confidence in November, you should have a list of good scores now. Yeah. Okay. So it is important that you do it. Now suppose your mock scores are very bad now, then I'm telling you कि थोड़ा chill मारो, तुम अपने आप को बताओ कि ये mock इतना important नहीं है, but I'll take one more mock next week, okay, and one more mock next week. So if you have a list of say 15 mocks, now if say all the mocks are not good, then unfortunately I think probably you're not good. You see what I'm saying, right? Yeah. But say out of those 15, say 10 are good mocks, and say 2 or 3 are not good mocks. You can tell yourself that 10 mocks are good, 2-3 are just like anomalies. Yeah. और सर बेसिकली सारा खेल माइंडसेट का ही है, राइट? करेक्ट, 100%. या सर एक बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो है स्कोर फ्लक्चुएशन की. उनके एक एग्जाम में तो स्पेशली इन वीआरसी सेक्शन, उनके एक एग्जाम में तो आते हैं 16 मार्क्स, दूसरे में आते हैं 34 मार्क्स. तो ऐसे कुछ बताइए जिससे कुछ कंसिस्टेंसी आ जाए इनके वीआरसी सेक्शन में. देखो, वीआरसी सेक्शन में 2 चीजें होते हैं. पहले वीआरसी में की जो होता है, ओके, वो थोड़ा सब्जेक्टिव होता है. काफी मॉक्स में ऐसा होता है कि जो भी सेट कर रहा है पेपर, ओके, वो कुछ सोचता है, स्टूडेंट्स कुछ और सोचते हैं. लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशन में मैं लास्ट 10 साल से देख रहा हूँ, जब वीआरसी का की आता है, आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस थोड़ा डिबेटेबल होता है. बाकी 20 क्वेश्चंस में देयर इज नो डाउट, एवरीबॉडी एग्रीज कि ये 20 क्वेश्चंस का आंसर यही है. ओके, 2-3 क्वेश्चंस का यहाँ वहां होता है. नॉर्मल मॉक तुम अगर देखोगे तो 24 क्वेश्चंस में एटलीस्ट 12 to 13 क्वेश्चंस आर डिबेटेबल. तो मैं ये बोलूंगा कि वीआरसी को इतना सीरियसली मत लो. ओके, जो भी मॉक स्कोर्स आ रहे हैं उतना सीरियस मत लो. ओके, कि मेरा बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है.
वीआरसी में मुझे लगता है कि जहां पे एक्यूरेसी ज्यादा हो सकता है वो है आरसी, ओके। एंड आरसी में भी इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ओके। Okay. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लास्ट 2 ऑप्शंस में कुछ अटक रहा है, लास्ट ऑप्शन में गलत ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, Exactly. तो इवन इफ दैट हैपेंस, मुझे लगता है कि तुम्हारा जो ट्रेंड है, तुम्हारा जो पाथ है, वो एक्चुअली काफी अच्छा है। तो मैं बस सिंपली ये बोलूंगा कि वीआरसी मॉक स्कोर्स फ्लक्चुएट होंगे, क्योंकि वीआरसी की सब्जेक्टिव होता है, उसमें इतना लोड मत लो। या और सर वीआरसी सेक्शन की अगर हम बात कर ही रहे हैं, उनकी एक अटेम्प्ट स्ट्रेटजी पे भी बात करते हैं। अब कई स्टूडेंट्स हैं जो 3 आरसी अटेम्प्ट करते हैं और पूरी वीए अटेम्प्ट करते हैं, राइट। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चारों आरसी अटेम्प्ट करते हैं लेकिन फ्यू वीए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हिच वन स्ट्रेटजी वर्क्स? मैं ये बोलूंगा कि जो अटेम्प्ट स्ट्रेटजी है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ओके। जो भी वो उसको पसंद आ रहा है, जिसको भी उसको ही इज एबल टू डू वेल, ओके, और शी इज एबल टू डू वेल, उसको वो फॉलो करना चाहिए। एंड बिफोर यू फाइनलाइज ऑन योर स्ट्रेटजी, ओके, तुम्हें काफी सारे मॉक्स लेना चाहिए ताकि तुम्हें पता चले कि कौन सा स्ट्रेटजी तुम्हें अच्छा लग रहा है, कौन सा स्ट्रेटजी में तुम कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, ओके। मेरा स्ट्रेटजी मैं सबको बताता हूँ। मेरा स्ट्रेटजी ये है कि वीएआरसी में फर्स्ट 2 आरसीस में चूज करता हूँ, फर्स्ट 2 आरसीस सॉल्व करता हूँ, और आरसीस में भी मैं थोड़ा सॉर्ट कर देता हूँ, मतलब पहले 1-2 मिनट में देखता हूँ कि आरसी का टॉपिक क्या है, क्योंकि फर्स्ट 2 आरसीस मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 आरसीस में मुझे एक्यूरेसी काफी ज्यादा होना चाहिए, तो मैं चूज करता हूँ जिस टॉपिक पे मुझे इंटरेस्ट है। 2 आरसीस होने के बाद और मैं काफी कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, ओके। इतना कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि मैं थोड़ा टायर आउट हो जाता हूँ, ओके, 2 आरसीस के बाद। और मुझे लगता है कि थर्ड आरसी अगर मैं तभी अटेम्प्ट करूंगा, उसमें 2 दिक्कतें होती है। एक तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स थोड़े गिरेंगे, और आरसीस होने के बाद अगर पूरा वीए क्वेश्चंस में एंड में रख रहा हूँ तो मैं थोड़ा कैजुअल भी हो सकता हूँ कि ये तो वीए ही है। तो ये दोनों के वजह से मैं ये करता हूँ कि 2 आरसीस पहले अटेम्प्ट करता हूँ, तब थोड़ा वीए करता हूँ, ताकि मुझे पता है कि ठीक है आरसी फिर से आ रहा है, तो मैं पूरा कैजुअल नहीं हो जाता हूँ। थोड़ा कैजुअल तो होता हूँ क्योंकि मुझे ब्रेन को भी थोड़ा रेस्ट देना है, बट आई ट्राई टू अटेम्प्ट इट करेक्ट। एंड मैं ये देखता हूँ कि 4 वीए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ, सो 2 आरसी और 1 वीए मैं ट्राई करता हूँ टू फिनिश विथ 20 मिनट्स में। दिस इज बेसिकली एग्जैक्टली हाफ ए पॉइंट, ओके। नाउ अगर ऐसा हो रहा है कि मुझे कोई आरसी में बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि ठीक है मैं ज्यादा टाइम लूंगा, ओके। मैं ये कॉम्प्रोमाइज करूंगा कि मेरा एक्यूरेसी शायद कम हो जाए, लेकिन मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो 2 आरसी ऑन 4 वीए क्वेश्चंस आई ट्राई टू अटेम्प्ट इन द फर्स्ट 20 मिनट्स। ट्राई टू अटेम्प्ट नहीं, वो मोस्टली होंगे। मतलब क्योंकि इट कैन हैपन दैट माय एक्यूरेसी हैज फॉलन, आई हैवंट डन वेल, बट इट वोंट हैपन दैट आई हैव टेकन मोर टाइम, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे सारे 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आई अगेन अटेम्प्ट एन आरसी, देन आई गो बैक एंड आई फिनिश द बीए। एट दिस टाइम टिपिकली आई विल हैव अराउंड 5-6 मिनट्स लेफ्ट, एंड वो 5-6 मिनट्स में मैं जल्दी लास्ट आरसी कर देता हूँ, ओके। तो एक्यूरेसी माइट सफर, बट आई विल नॉट अटेम्प्ट ए क्वेश्चन। एक्चुअली होता क्या है कि 4th आरसी लोग इसलिए अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि एक्यूरेसी का डर होता है, राइट। कि लेकिन मुझे भी यही लगता है कि आप सिर्फ एक्यूरेसी के डर से एक पूरा आरसी छोड़ना इज नॉट अ राइट स्ट्रेटजी, राइट। नो, इट्स अ वेरी बैड। जैसा कि आपने बताया था कि 12 मार्क्स होते हैं, राइट। 12 मार्क्स, हाउ कैन यू लीव लाइक दैट? ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है। मुझे एक्चुअली पता नहीं, आई डोंट नो एनीबॉडी who left an entire essay and scored above 9.5, okay, overall, okay, because मुझे लगता है कि वो इतना गलत स्ट्रेटजी है, okay, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। एक आरसी, एक वीए क्वेश्चंस, 1-2 वीए क्वेश्चंस छोड़ रहे हो, which is completely fine। 3 मार्क्स है, तुम्हें पता नहीं है, okay, you are not sure, मैं बोलूंगा कि वो भी मत छोड़ो, okay, क्योंकि मैंने बोला था ना, ये expected marks from a particular question, even if you are able to eliminate one option, is positive, and if you are not able to eliminate any option, it is 0। but अगर मेरा बिल्कुल पता नहीं है, then I don't attempt। मतलब वो expected marks 0 पे मैं attempt नहीं करता, but if I am able to eliminate even one option, I take something and come out, okay, which is what I would expect everybody to do। अगर तुम VA में कोई एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो अटेम्प्ट करो, ठीक है। लेकिन आरसी छोड़ना तो बहुत ही गलत है, मुझे लगता है कि किसी को वो नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक्यूरेसी कम हो रहा है, विच इज फाइन, ओके, क्योंकि तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, ओके। तुम अगर 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो विद 70% एक्यूरेसी, इज दैट गुड, या 24 क्वेश्चन विद 60% एक्यूरेसी? मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्क्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हारा एक्यूरेसी थोड़ा कम हो रहा है, इट इज फाइन, ओके, बट अटेम्प्ट एज क्लोज टू 24 एज पॉसिबल। तो थोड़ी सी अब डीएलआर की बात करते हैं। डीएलआर में होता क्या है कि प्रॉब्लम आती है सही सेट को चूज करने की। अब क्या होता है कि लोग स्पेंड कर देते हैं 10 to 15 मिनट्स ऑन वन सेट, फिर उन्हें पता लगता है कि ये सेट तो करना ही नहीं था, ठीक है, ये तो लाइक काइंड ऑफ लेंथी सेट था, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है पैनिक। अब उसके बाद उनको लगता है कि
अब इतने से टाइम में कैसे मैं तीन सेट वो हम्म, करूंगा, लाइक 2 सेट कैसे कंप्लीट करूंगा, जो कि बेयर मिनिमम होते हैं कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। हम्म। सो उस पैनिक को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो मेरे साथ ऐसे हुआ था कैट हाँ। 2020 में, ये भी मैंने बताया था कि मेरे साथ वही हुआ था। ओके, मैं कैट 2019 में 100 आया था, तो कैट 2020 में फिर से मुझे 100 आना था। ठीक है, ओके। और मुझे लगा था कि एलआरडी में बहुत स्कोर करना है, बॉन्ड में बहुत स्कोर करना है। तो मैं एलआरडी जब गया था कैट 2020 में, मुझे लगा था कि मुझे सारे सेट सॉल्व करना है। ओके, और बहुत ही टेरेबल गया था फर्स्ट 15-20 मिनट्स, क्योंकि मुझ पे प्रेशर था कि मुझे सारे सेट्स आंसर करना है। ओके, तो टाइम जा रहा था, मैं कुछ सॉल्व नहीं कर पाता। एक ही सेट हुआ था, एक सेट में 3 क्वेश्चंस हुए थे टिल व्हेन 30 मिनट्स वर डन। ओके, ओके। फाइनली कुछ ना कुछ करके, कुछ तो गेस मार के, कुछ तो फिगर आउट करके, कुछ ऑप्शंस यूज करके मैंने सॉल्व किया था। वो कैसे सॉल्व किया था वो भी एक वीडियो में मैंने बनाया था, वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। लेकिन उसके बाद से मुझे लगा था कि अपने आप पे प्रेशर लगाना फॉर एलआरडीआई इज ए टेरेबल स्ट्रेटेजी। ओके, तो जो भी स्कोरिंग होता है ना, जो भी, क्योंकि अगर किसी को कुछ टारगेट है परसेंटाइल, वो टारगेट परसेंटाइल शुड बी अचीव्ड इन इधर क्वांट और वर्बल, ओके। नॉट इन एलआरडीआई। ओके, एटलीस्ट वो मेरा एक्सपीरियंस है। और मैं इवन नाउ व्हेन आई टेक कैट, मैं अपने आप को यही बताता हूँ कि एलआरडीआई में, ओके, अर्लियर व्हेन देयर वर 4 सेट्स, माय टारगेट वाज 2 सेट्स। नाउ अभी क्योंकि 5 सेट्स है, even though it is 2 sets, but I hope I get 3 sets correct. Okay, but mostly I'll get more sets. But at least I know that worst case scenario I should get 2 sets correct. Okay. तो एलआरडी में मैं ये बोलूंगा कि तुम अपना जो भी एम्बिशन है, ओके, थोड़ा कम रखो, बहुत प्रैक्टिस करो। ओके, जितने सेट्स हो सकते हैं उतना प्रैक्टिस करो। लेकिन जब एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजी है, एग्जाम के दिन अपना माइंडसेट ये होना चाहिए कि एलआरडीआई में कम सेट्स कॉल करेंगे तो भी चलेगा। ओके, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर 10 मिनट हो गए और तुम स्टक हो गए हो, तब तुम्हें पैनिक नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ठीक है, मैंने मेसअप कर दिया एक सेट। ओके, बट आई जस्ट नीड टू गेट 2 सेट्स करेक्ट। ओके, सो आई हैव 15 मिनट्स पर सेट एंड आई हैव टू गो एंड फिगर आउट व्हाट आर द अदर सेट्स। सो जो पैनिक होता है वो कम होगा अगर तुम अपने आप पे लगा रहे हो कि मुझे 3 सेट्स आंसर करना है या 4 सेट्स आंसर करना है, और अगर 10-15 मिनट किसी एक सेट में अटक गया, then your mind will keep thinking कि okay, I have 25 minutes, 3 sets, per set I need 8 minutes, it is not happening, and you will perform much worse. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजी फॉर एलआरडीआई शुड बी एम लेसर बट बी वेरी वेरी अटेंटिव, ट्राई टू गेट एवरीथिंग दैट यू कैन। और सर अगर क्वांट्स की बात करें तो कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट भी आता था, हमें क्वेश्चंस भी आते थे, लेकिन एग्जाम में कर ही नहीं पाए, वो मॉक्स में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए वो, राइट? क्योंकि होता क्या है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए या ये क्वेश्चन हमें लीव करना चाहिए। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना था या लीव करना था इन द एग्जाम और इन द मॉक? तो बेसिकली what I would say is again the same thing. Okay, if you solve a lot of questions, you'll be able to identify questions better. Okay, and there are certain things that I look at when I'm attempting quant questions. For example, if the length of the question is long, okay, अगर वो 3-4 लाइंस का है, okay, मैं वो इनिशियली थोड़ा छोड़ने का सोचता हूँ, क्योंकि उसका सिंपल रीजन है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर, वो क्वेश्चन पढ़ के उसका जो भी थीम है वो अंडरस्टैंड करके, उसका जो भी सेटअप है वो अंडरस्टैंड करने में भी 2-3 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, लग जाता है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद सॉल्व करके आंसर करना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा है। ओके, कभी कभी मैं ऐसा भी देखता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, वो भी मैं थोड़ा सोचता हूँ कि ये भी शायद ट्रिकी हो सकता है। ओके, इफ इट इज लाइक ए 1 लाइन, लेस देन 1 लाइन, नंबर सिस्टम्स काइंड ऑफ ए थिंग। ओके, तो बट ये मुझे कैसे आया, मुझे इसीलिए आया क्योंकि मैंने काफी क्वेश्चन सॉल्व किया। तो जब तुम कोई भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, you can identify whether this is a tricky question or not. It won't work always, but at least it will work sometimes. And even in quant, I would say, like I was telling you with respect to verbal, कि 20 मिनट्स के बाद मुझे 2 आरसी सॉल्व करना है, ओके, 4 वर्बल क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे एग्जैक्टली पता है मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, क्वांट में भी इट इज सिमिलर। क्वांट में भी ऐसा है कि मैं हर क्वेश्चन के बाद मैं देखता हूँ टाइमर, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए मेरे पास 2 मिनट ही है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आता है तो मैं क्विकली सॉल्व कर देता हूँ, कभी कभी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर मुझे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है तो मैं वो छोड़ के नेक्स्ट पे जाता हूँ। ओके, तो उसमें कुछ शर्मिंदगी होने वाली कोई बात नहीं है। ओके, यू कैन लीव क्वेश्चंस एंड गो टू द नेक्स्ट वन। समटाइम्स इन मेनी केसेस, ओके, इफ आई फील कि देखो दिस इज द राइट ऑप्शन, कभी कभी लगता है क्वांट में। ओके, बिल्कुल लगता है, लेकिन आई कुडंट प्रूव इट और आई कुडंट सॉल्व इट। ओके, आई कांट बी श्योर, इवन देन आई मार्क फॉर रिव्यू एंड गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, क्योंकि क्वांट में मुझे लगता है कि काफी कम टाइम होगा जब वापस आ सकता हूं तो। ठीक है, एंड उसमें भी मैं अपने आप को वो इंट्यूशन जो होता है ना उसमें बिलीव करता हूं, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन है, ओके, एटलीस्ट इट विल बी इन द टॉप 2।
ओके, समझ में आ रहा है ना? या समझ रहा हूँ। तो उसमें अपने आप को बिलीव करके उस पर डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्वांट क्वेश्चन में तुम्हें पता है कि ये आंसर जो होगा वो इवन नंबर होगा, बिल्कुल, वो समझ में आ गया, ओके। हाँ। लेकिन 2 इवन नंबर है, ठीक है, और तुम्हें पता है कि मैं काफी टाइम लगाऊंगा तो ये करेक्ट आएगा, बिल्कुल, तब मैं कोई दोनों में से कुछ एक लगा के मार्क को रिव्यू लगा के नेक्स्ट पे जाता हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं वापस आके उसको सॉल्व करता, अगर नहीं करता तो भी मेरा 50% चांस है वो करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल, और वो 50% से मुझे एक्सपेक्टेड मार्क्स जो भी है पॉजिटिव है, तो वो करके चलता। बिल्कुल। एक और चीज है सेक्शनल टेस्ट, और सेक्शनल टेस्ट को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो आपके हिसाब से कैसे इसको बेस्ट तरीके से यूज किया जा सकता है सेक्शनल टेस्ट को? सेक्शनल टेस्ट मेरे हिसाब से जो भी तुम्हारा वीकेस्ट सेक्शन है, ओके, उसको काफी प्रैक्टिस करना चाहिए सेक्शनल टेस्ट में। सेक्शनल टेस्ट का एक और एडवांटेज ये होगा कि अगर कोई आदमी या कोई स्टूडेंट एक कोई पर्टिकुलर सेक्शन में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और उसमें कुछ कॉन्फ्रेंस इश्यूज हो रहे हैं, ओके, उसको लग रहा है कि वीआरसी में तो मेरा गलती होता है, या कुछ नया स्ट्रैटेजी, मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी यूज करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है सेक्शनल टेस्ट। क्योंकि अगर सेक्शनल टेस्ट लेने में 40 मिनट्स लगते हैं, तो सेक्शनल टेस्ट एक 40 मिनट्स में तुम काफी एटलीस्ट डेली एक सेक्शनल टेस्ट तो ले सकते हो, तो उसका वो एडवांटेज होगा। मेरे लिए सेक्शनल टेस्ट आर ए वेरी गुड वे इन विच यू कैन इंप्रूव इन द सेक्शन दैट यू आर वीकेस्ट एट, क्योंकि तुम पूरा मॉक तो नहीं ले सकते हो ना जस्ट टू फिगर आउट ए न्यू मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी। तो सर इन लास्ट 3 मंथ्स में लाइक कोई रफ आइडिया अगर आप देना चाहो कि वीआरसी के इतने सेक्शंस देने हैं, डीएलआर के इतने सेक्शंस और क्वांट्स के इतने सेक्शंस अगर दोगे तो एक अच्छा एक अमाउंट ऑफ, मैं ये बोलूंगा कि पीपल हु आर एमिंग टू स्कोर 95% प्लस, ओके, या 90% प्लस, जो भी लाइक थोड़ा सीरियस एस्पिरेंट्स है, हाँ, मैं उनको बोलूंगा कि ए बेस्ट एक वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग स्ट्रेटजी इज अभी टेक 1 मॉक एवरी वीक, ओके। मुझे कुछ लोग पता है जो काफी मॉक्स ले रहे हैं, ओके, वो मुझे लगता है कि वो शायद करेक्ट नहीं है, बट अगेन लाइक आई टोल्ड यू, एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ओके। अगर उसको वो अच्छा लग रहा है, अगर उसको वो इज लाइकिंग इट एंड इज एंजॉइंग इट, देन दैट इज वन थिंग, ओके। बट मुझे लगता है कि अगर काफी ज्यादा मॉक्स लेते हैं अभी तो थोड़ा बर्न आउट हो सकते हैं नवंबर में, ओके, क्योंकि मॉक इज टायरिंग, नो, इट इज अ 2 hour एफर्ट, ओके। But 1 mock every weekend, I think, is very good. Okay. And sectional tests, I would say take as many sectional tests as you can. Okay. Within this week. Okay. Weekday में काफी sections लो, क्योंकि sections are 40 minutes. तुम एक section लेके बाहर जाके कुछ करके वापस आके अगर इंथो है तो एक और section ले सकते हो. Okay. तो sectional में कुछ limit नहीं है. Try to take say 3 or 4 sections every week. Okay. And 1 mock every weekend. ओके। और सर जैसे कि आप बता रहे थे काफी ज्यादा मॉक्स भी नहीं देने चाहिए, फुल लेंथ मॉक, क्योंकि उससे एक सीरियसनेस भी खत्म हो जाती है मॉक की, राइट? अगर आप वीकेंड पे एक दे रहे हो, तो पूरा वीक आप ये सोचोगे वीकेंड पे मेरे को वो मॉक देना है, राइट? जैसे कि आप बता रहे थे कुछ दिन पहले, तो सीरियसनेस रहती है, राइट? हाँ, वो भी है, वो तो 100% है, क्योंकि अगर तुम मॉक ले रहे हो और उस मॉक को तुम रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, क्योंकि मॉक में भी एग्जाम टेकिंग स्ट्रेटजी में ऐसा होता है कि तुम अगर बहुत मोटिवेटेड हो मॉक में, तुम्हारा स्कोर ज्यादा आता है, ओके। तुम थोड़ा कैजुअल हो, थोड़ा केयरलेस हो, तो मॉक्स का स्कोर कम होता है, ओके। तो वो मॉक को तुम काफी इंपॉर्टेंट अपने आप को बताना चाहिए कि काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, उसके बारे में सोचना चाहिए, ओके, 2-3 दिन पहले से, एंड यू हैव टू पंप योरसेल्फ कि वो मॉक में मुझे अच्छा करना है, ओके, एंड यू हैव टू गिव योर फुल एफर्ट ड्यूरिंग द 2 hours ऑफ मॉक, ओके। Even if the mock section, in one of the sections, suppose you are struggling, you have to motivate yourself कि no, this is a very important mock, I have to give my best. ऐसा नहीं लगना चाहिए बीच में कि ठीक है ये तो मॉक है, या ठीक है ये मॉक एनीवेज इज आई एम नॉट डूइंग वेल, ओके। तुम अगर ऐसा थोड़ा कैजुअल हो जाते हो, ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट योर हिडन रिसोर्सेज, ओके। एग्जैक्टली। सर जैसे कि टाइम कंस्ट्रेंट है, लाइक लेस देन 3 months हमारे पास बचे हैं, सो कुछ ऐसी चीजें जो आप चाहेंगे कि एक सीरियस एस्पिरेंट को डेली करनी ही चाहिए, उनको अपने डेली शेड्यूल में डालनी ही चाहिए कि उनको इतने क्वेश्चंस वीआरसी में करने हैं, या ये चीजें डीएलआर में करनी है, या ये क्वेश्चंस क्वांट्स में करने हैं, तो कुछ समथिंग व्हिच दे कैन डू डेली? What I would say is I would recommend them to, in these last 3 months, okay, have a schedule, okay, because I believe and I've seen in my life also, once you have a schedule and once you follow a schedule, you improve quite a lot in anything, okay. So you should have a fixed schedule, so that your body knows कि ठीक है, it is evening, I have to study. If some people study in the morning, so सुबह से 5 बजे या 6 बजे तुम उठ जाते हो और प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो at whatever time, 6 to 8, okay, or evening 6 to 8, whatever is the time, you should be clear that this is my discipline, okay. And when you're taking the mock also, you should be disciplined. The mock has to be taken at a particular time, okay, so that your body, your mind, everything knows that this is the time to take a mock, okay. And in the last 3 months overall,
not just on a daily basis, I would say you have to solve a lot of questions. Okay. When you solve questions, you feel confident that you know that I know this question. I can identify questions better. If you just watch videos, I don't think you will improve your confidence. तो सर चलो ये तो हो गई पढ़ाई की बातें. अब थोड़ी सी प्रोफाइल से रिलेटेड बात करते हैं, राइट. तो जिन बच्चों की प्रोफाइल अच्छी नहीं है, जिनके एकेडमिक्स थोड़े से कम है, राइट, सो रियलिस्टिकली वो कौन से कॉलेज टारगेट कर सकते हैं? देखो, अभी मैं ये भी बोलूंगा कि तुम्हारा माइंड जितना क्लटर्ड होगा, तुम्हारा एफर्ट उतना गंदा होगा. ठीक है. अभी सारे कॉलेजेस, जो भी कॉलेज है, उसका एप्लीकेशन भर दो. मुझे पता है कि पैसे लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो पैसे एमबीए फीस का है, ओके, जो पैसे मतलब एमबीए के बाद सैलरी का है या लोन का है, जो भी है, उसके कंपैरिजन में एमबीए का फीस काफी कम है. ओके. तो अभी ये मत सोचो कि कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है. अगर तुम्हें लग रहा है कि आई कैन फोर्स माई सेल्फ जॉइनिंग दिस कॉलेज, उसमें अप्लाई करो. ओके. और उसके बारे में सोचो मत. ये एकेड्स के बारे में, प्रोफाइल के बारे में अभी सोचो मत. अभी क्या इंपॉर्टेंट है, ये है कि तुम जितना टाइम है, जितना एफर्ट है, तुम्हारा जितना सोच है, वो सब सिर्फ कैट पे होना चाहिए. ओके. एनीथिंग एल्स व्हिच इज डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम इट, ओके, इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. राइट नाउ यू हैव टू ओनली फोकस ऑन कैट. ओके. एंड ये मैं काफी मतलब अपना हिस्ट्री पढ़ता हूँ ना अपना, तो मुझे लगता है कि अर्जुन जो भी है, ओके, उसका फोकस ऐसा होता था कि उसको सिर्फ अपने गोल पे, ओके, उसको ही कैन इजीली फिक्सेट ऑन ए पर्टिकुलर गोल. और मुझे लगता है कि हम सब में भी ऐसे देयर आर एलिमेंट्स टू इट, देयर आर सम पार्ट्स टू इट. ओके. इफ वी ट्रेन आवर ब्रेन, वी कैन फोकस ओनली ऑन वन थिंग. So I would say all the CAT aspirants who are pretty serious, okay, focus on CAT. Anything else is just a distraction right now. एग्जैक्टली. इनफैक्ट हमें भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमारे गैप ईयर है, राइट, मैं इंटरव्यू में कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा. एज लाइक कि पहले इंटरव्यू तक पहुंचो, देन वी विल फिगर आउट हाउ टू जस्टिफाई. Right. And the only thing I would tell people like that is, देखो, CAT के बाद you have 2 months, 3 months. Okay. That is a lot of time to sharpen your interview skills. Lot of time. Okay. I personally have improved a lot when I was preparing for my interviews in those 2-3 months. Okay. So I know that you can improve in 2-3 months. It is not at all an issue. However bad your profile is, it won't matter in the interviews if you prepare well, because you can answer it, you can defend it. Okay. And I have done it. There were also some issues with my profile, but I was able to handle it. And I prepared for it. ऐसा नहीं था कि मेरा कुछ लक से हो गया था. ओके. वो प्रोफाइल में जो भी इश्यूज थे, उसको कैसे डिफेंड करना है, मैंने सोचा था, सीनियर से बात किया था, ओके, जो आईएम में थे उनसे बात किया था, कुछ तो फिगर आउट करके आई हैड एन आंसर रेडी. ओके. आई वेंट थ्रू ए लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर इट. ओके. बट वो सब अभी मत सोचो. एग्जैक्टली. वो सब सोचने का टाइम है, एंड काफी टाइम है, और वो इतना बड़ा इश्यू भी नहीं है. सबसे बड़ा इश्यू है अभी कैट में अच्छे से करना. That is the most important thing. बिल्कुल सर. और सर चलिए इसको पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं. बस एक लास्ट में जाते जाते अगर कोई गोल्डन एडवाइस आप स्टूडेंट्स को देना चाहें इस साल कैट के लिए. I would say one more thing that जो भी कैट दे रहा है, okay, preparing for CAT is one thing, but exam taking strategy also is another thing. So I would want you to keep thinking about yourself. Try to introspect what is it that brings the best out of you. Okay. There are certain times you do well. There are certain times you don't do well. So you have to figure out, and you have to try to understand yourself better, because that I think will help you quite a lot on the day of the examination. Okay. So that was about this podcast. If you guys have any questions which we didn't cover in this particular podcast, please do comment below this video. We look at all the questions and I try to answer to them to the best of my ability. All right. Thank you guys. Thanks for tuning in with us.